Hello students, welcome to Lightbeam classes. In this video, I am continuing my discussion on the chapter Lines and Angles. तो अभी तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 किया है. एक्सरसाइज नंबर 6.1 का theory as well as questions we have did. Now in this video, I am going to discuss theory part of the exercise number 6.2. ठीक, तो इससे पहले एक बार recap कर लेते हैं. 6.1 का दो एक्सियम्स एक थ्योरम. दो एक्सियम्स क्या है? If a ray stands on a line, then the adjacent angles, right? Then the sum of the adjacent angles so formed is equal to 180. This is the first axiom. Second axiom क्या है? If the sum of the adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms of the angles will form a straight line. Theorem: if two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. तो ये थ्री रिजल्ट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 में किया है, राइट? So in this exercise number 6.2, we are going where we will study further axioms and theorems. इससे पहले कुछ कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए, कुछ डेफिनेशंस. तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है. ट्रांसवर्सल, राइट? तो अगर मान लो there are three lines, two or more lines you can take. I'm taking, let's say, so I'm taking two or more lines, one line, second and third. तो इन तीनों लाइंस का नाम भी दे देते. लेट्स आई एम कॉलिंग दिस लाइन एज एल, आई एम कॉलिंग दिस लाइन एज एम, एंड आई एम कॉलिंग दिस लाइन एज एल एन, राइट? अब तो आई हैव कंसिडर हियर थ्री लाइंस. अगर मान लो मैं ऐसे कोई लाइन ड्रॉ किया, इन तीनों लाइंस को थ्री डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेट्स से आई एम ड्रॉइंग ए लाइन, राइट? दिस स्ट्राइट लाइन इंटरसेक्टिंग the three lines in three different points, then I will call this straight line as transversal line for the lines LMN. For lines LMN, right? So definition क्या है transversal की? If two or more lines is intersected by a line at distinct point, then the line is called the transversal line, right? अगर मान लो तो मैं क्यों क्या है? If two or more lines, let's say I have taken three lines again. अगर कोई एक लाइन है, इन तीनों लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से दिस इज ए ट्रांसवर्सल. एक और लाइन में ड्रा कर रहा हूँ. दिस इज नॉट ए ट्रांसवर्सल फॉर द गिवन थ्री लाइंस. क्यों? ये जो लाइन है, दिस लाइन इज नॉट इंटरसेक्टिंग द थ्री लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. क्यों? यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन को मैं मान लेता हूँ सम के. ये जो लाइन के है इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स, राइट? तो यहाँ पे के ट्रांसवर्सल नहीं है, बट दिस लाइन इज द ट्रांसवर्सल. समझ पा रहे हो, राइट? इफ ए लाइन intersecting given number of lines, right, in distinct points, then the line is transversal, then the line is called the transversal for the given lines, right? तो लिख लेते डेफिनेशन. समझ पा रहे हो आप लोग, है ना? यहाँ पे दिस इज लाइन वन, दिस इज लाइन टू. Line 1 is transversal for the given three lines, but line 2 is not transversal for the given three lines because it is not intersecting the given lines in distinct points. तो कुल मिला के मैं लिख सकता हूँ if there are, right, if there are n different lines
if there are n different lines and a line intersecting these lines, these n different lines, in n different points, then I will call, then, right, if there are n different lines and a line k मान लो and a line t मान लो, ठीक, if there are n different lines and a line T, for suppose, intersecting these n different lines in n different points, then the line T is called transversal line for the given n different lines. समझ पा रहे हो? तो अगर टू लाइन्स है, इफ देयर आर टू लाइन्स, टू डिफरेंट लाइन्स, कोई भी एक लाइन उन दोनों लाइन्स को टू डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल बोलूँगा. अगर थ्री लाइन्स है, कोई भी एक लाइन उन तीनों लाइन्स को थ्री डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आई विल कॉल द लाइन इज अ ट्रांसवर्सल लाइन. अगर फोर लाइन्स है, इफ अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग द फोर लाइन्स इन फोर डिफरेंट पॉइंट्स, देन द लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन. समझ पा रहे हो, है ना? जैसे टू लाइन्स है, दीज आर टू लाइन्स, ठीक, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो रेड वाली लाइन ट्रांसवर्सल होगा. ये जो वाइट वाला लाइन है, ये लाइन है, दिस इज नॉट ए ट्रांसवर्सल. क्लियर? तो ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन आई होप सबको क्लियर हो गई. ठीक है, ठीक. अब तो अब मैं थ्री और मोर लाइन्स नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ टू लाइन्स ले रहा हूँ. टू लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल. टू लाइन्स एंड ए ट्रांसवर्सल. ठीक. अगर मान लो कोई भी दो लाइन्स दिया है और ट्रांसवर्सल दिया है, हमेशा 8 angles will be created. हमेशा 8 angles will be created. Two lines. ठीक. So I am calling this as line L and I am calling this as line M. एक another line है transversal line, जिसको मैं T बोल रहा हूँ. तो two lines and a transversal, always 8 angles will be generated. कितने एंगल जनरेट होगा? 8 एंगल्स. देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, angle 7, angle 8. So two lines and a transversal, 8 angles will be generated, right? अब इसमें कुछ पेयर ऑफ एंगल्स हम देखेंगे, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स. तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स. कौन सी दो एंगल्स को हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे? विच टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स? देखो, करस्पॉन्डिंग नाम में ही पता चल रहा है भाई, करस्पॉन्डिंग है ना. तो एंगल 1 एंड एंगल 5 करस्पॉन्डिंग. क्यों? एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग. दोनों एंगल्स एल है ना, टू गिवन लाइंस एल एंड एम है, दोनों एंगल्स है ना गिवन लाइंस के ऊपर फॉर्म कर रहे हैं. दोनों एंगल्स गिवन लाइंस के ऊपर फॉर्म कर रहे हैं एंड ट्रांसवर्सल की राइट साइड में फॉर्म कर रहे हैं. राइट, मेरी देखो राइट साइड में फॉर्म कर रहे हैं एंड ट्रांसवर्सल की राइट साइड में. So that's why angle 1 and angle 5 are corresponding angles. Similarly, angle 2 and angle 6.
तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर मैं बात करूँ, कौन सी पेयर ऑफ एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दोनों एंगल्स लाइंस के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं एंड ऑन द राइट, अगर आप ऐसे देखोगे आप लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल फॉर्म कर रहे हैं, राइट। एंड एंगल 2 एंड एंगल 6 आर अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 6 दोनों एंगल्स लाइंस के ऊपर फॉर्म हो रहे हैं एंड ऑन द राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। फिर एंगल 4 एंड एंगल 8 अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 एंड एंगल 7 आर करस्पॉन्डिंग। कैसे लिख दो, एंगल 3 एंगल 7 एंगल 4 एंड एंगल 8। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। टू लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल में करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा वो पता होना इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब नेक्स्ट नेक्स्ट है alternate इंटीरियर एंगल्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल्स इज alternate इंटीरियर एंगल्स। अब देखो नाम में ही पता चल रहा है alternate होना चाहिए, इंटीरियर आना चाहिए। इंटीरियर एंगल्स मतलब दो गिवन लाइंस के बीच में, एल एंड एम के बीच में होना चाहिए और alternate होना चाहिए। समझ रहे बात? तो एल एंड एम के बीच में होना चाहिए और alternate होना चाहिए। तो एंगल 4 एंगल 6 आर alternate एंगल्स। क्यों? एक एंगल ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में आ रहा है एंड लाइन के नीचे आ रहा है, एक एंगल ट्रांसवर्सल की राइट साइड में आ रहा है एंड लाइन के ऊपर। अब ऐसे देखो, एंगल 4 इधर आ रहा है, एंगल 6 अल्टरनेट, दोनों इंटीरियर है। ठीक, एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक और आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्या है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स? ठीक, अब अगेन अल्टरनेट होना चाहिए, एक्सटीरियर होना चाहिए, यानी कि दोनों लाइंस के बाहर होना चाहिए। तो एंगल 1 एंड एंगल 7, फिर एंगल 2 एंड एंगल 8 आर अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो पेयर ऑफ एंगल्स को कब मैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलूंगा? पेयर ऑफ एंगल्स को कब में, व्हेन विल आई से पेयर ऑफ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स? पेयर ऑफ एंगल्स को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कब बोलेंगे, ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लास्ट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इंटीरियर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। राइट, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब इसमें इसको भी नाम में पता चल रहा है, इंटीरियर एंगल्स मतलब दोनों लाइंस के बीच में आना चाहिए, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड यानी कि लेफ्ट या राइट। एंगल 3 कामा एंगल 6 इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल 4 कामा एंगल 5। ठीक, तो टू लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल ऑलवेज जनरेट 8 एंगल्स। उस 8 एंगल्स में पेयर ऑफ एंगल्स का, कुछ पेयर ऑफ एंगल्स का नाम इस तरीके का है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, अब इंपॉर्टेंट एक्सियम्स एंड थ्योरम्स। सबसे पहले एक्सियम, है ना? तो टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल्स में दो एक्सियम्स, चार थ्योरम्स आएंगे। टू लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल यू विल गेट टू एक्सियम्स एंड फोर थ्योरम्स। तो एक्सियम्स मैंने बताया था नीड नॉट बी प्रूव्ड,
क्लियर? तो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ द एग्जाम. सबसे पहले एग्जाम है ना. एक्सरसाइज 6.1 में दो एग्जाम्स बोला था, उसको हम लीनियर पेयर एग्जाम बोलेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम क्या है? इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two parallel lines, then the corresponding angles are equal. अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस का इंटरसेक्ट कर रहा है, then the corresponding angles are equal. इस थ्योरम का मतलब समझ लेते हैं. मतलब क्या कहना चाह रहा है. then the corresponding इस एक्सियम का. तो मैंने क्या बोला, एक ट्रांसवर्सल है, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. लेट्स से दिस इज ए लाइन एंड दिस इज लाइन. ये दोनों लाइंस कैसे हैं? एक दूसरे की पैरेलल है. और एक ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. दिस इज द ट्रांसवर्सल टी, दिस इज लाइन एल, लाइन एम. यहाँ पे क्या है? हियर एल इज पैरेलल टू एम एंड टी ट्रांसवर्सल. इस केस में व्हाट एक्सियम इज सेइंग, corresponding angles are equal. This is angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8. Corresponding angles equal मतलब एंगल 1 एंड एंगल 5 बराबर है. अभी अभी मैंने लिखवाया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना. एंगल 1 एंड एंगल 5 दोनों लाइंस के ऊपर आ रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स, लेफ्ट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. एंगल 2 एंड एंगल 6 बराबर, एंगल 3 एंड एंगल 7 बराबर, एंगल 4 एंड एंगल 8 बराबर. दिस इज व्हाट दिस एक्सियम इज सेइंग. दिस इज व्हाट दिस एक्सियम इज सेइंग. ठीक, क्लियर. अब सर ये एक्सियम क्यों कहा है? वाई इट इज एक्सियम. अगर आप देखोगे, है ना, तो अगर मैं इस पैरेलल लाइन को ऐसे ही ऊपर मूव करो, आई एम जस्ट, है ना, इस पैरेलल लाइन को मैं मूव कर रहा हूँ ऊपर, एंगल भी देखो, साथ ही साथ एंगल भी मूव मूव होता जाएगा एंड एंगल एग्जैक्टली कोइंसाइड होगा. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर मूव कर रहा हूँ, तो एंगल भी एग्जैक्ट कोइंस, जब ये दोनों लाइंस कोइंसाइड हो जाएगी, एंगल भी एग्जैक्टली कोइंसाइड होगा. है ना. आप एक एक्सपेरिमेंट ट्राई, एक एक्टिविटी ट्राई कर सकते हो. एज यू, मैं एग्जैक्टली मूव नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे, एम को धीरे धीरे एल के साथ कोइंसाइड कर दो, सारी 5 6 7 8 एंगल्स 1 2 3 4 के साथ कोइंसाइड हो जाएगी. 5 6 7 8 एंगल्स 1 2 3 4 के साथ कोइंसाइड हो जाएगी. तो इट इज ऑब्वियस, दैट्स वाई इट नीड नॉट बी प्रूव्ड. ठीक. अब नेक्स्ट एग्जाम क्या है? इसी का रिवर्स है. नेक्स्ट एग्जाम इज, राइट, if a transversal intersect two lines such that one pair of corresponding angles are equal, right, then the two lines are parallel. अगर मान लो if a transversal intersects two lines, right, such that if a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal, a pair of corresponding angles is equal,
a pair of corresponding angles is equal, then the lines are parallel. टू लाइन्स है ना, वो लाइन्स पैरेलल हो जाएगी. यहाँ पे उल्टा है, अगर पैरेलल है वहाँ पे क्या है, अगर पैरेलल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होगा. यहाँ पे पैरेलल है ही नहीं पता. अगर मान लो एक ट्रांसवर्सल टू लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होता, ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर बराबर होता, वो दोनों लाइन्स पैरेलल होना ही पड़ेगा. पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, तो लाइन्स पैरेलल. इसकी रिवर्स. समझ रहे बात. अगर मान लो दो लाइन्स, हमको नहीं पता ये हाई पैरेलल पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, हमको नहीं पता, बट हमको ये पता चल गया कि ए पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, वन पेयर. तो मैंने बताया था टू लाइन्स एंड अ ट्रांसवर्सल, एट लाइन्स, एट एंगल्स विल बी जनरेटेड. है ना. तो इसमें हमको ये पता चल गया, इफ एंगल वन, ये जो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ. अगर एंगल वन एंड एंगल फाइव, या एंगल टू एंगल सिक्स, या एंगल थ्री एंगल सेवन, या एंगल फोर एंगल एट, इनमें से कोई भी अगर एक भी इक्वल पता चल गए, देन आई विल से एल इज पैरेलल टू एम. ठीक. वहाँ पे क्या है, एल पैरेलल टू एम, ये सब हो रहा है. यहाँ पे अगर ये इसमें से कोई भी अगर इक्वल होगा, एल पैरेलल टू एम. यहाँ पे क्या है, उल्टा. यहाँ पे उल्टा क्या है, उल्टा. अरे यहाँ पे एल इज पैरेलल टू एम गिवन है, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. लेकिन यहाँ पे अगर इनमें से कोई भी एक इक्वल है तो एल पैरेलल टू एम. दीज आर द टू एक्सियम्स. एक्सियम्स नीड नॉट बी प्रूव्ड. अब नेक्स्ट चार थ्योरम से ठीक सेम इसी तरीके के मैं थ्योरम्स का प्रूफ वैसे रफली बता दूंगा. पहले मैं लिख दूंगा थ्योरम्स, चार थ्योरम्स पहले लिख के आ जाना चाहिए. चलो अभी लिख दूंगा फटाफट. थ्योरम again, if a transversal intersect two parallel lines, if a transversal intersects two parallel lines, then the alternate angles are equal. Then the alternate angles are equal. Right. तो यहाँ पे each pair of the alternate angles equal लिख देते हैं. Then each pair of the alternate angles are equal. ठीक है. Then each pair of the alternate angles are equal. ठीक. तो यहाँ पे एग्जाम में भी ईच पेयर ऑफ देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देन द ईच पेयर ऑफ. ठीक. ठीक है. तो इसको भी समझ लेते हैं. लेट्स से दो पैरेलल लाइंस गिवन है और एक ट्रांसवर्सल है. तो दिस इज एल, दिस इज एम, दिस इज ट्रांसवर्सल टी. तो 8 एंगल्स आर जनरेटेड. ठीक. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लो एल इज पैरेलल टू एम, दिस इंप्लाइज क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स.
मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1 एंगल 7 की बराबर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल 2 एंगल 8 की बराबर, एंगल 4 एंगल 6 की बराबर, एंगल 3 एंगल 5 की बराबर। दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग, राइट। इसको आराम से प्रूव कर सकते हो कैसे, एल एंड एम आर पैरेलल, एल एंड एम पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा। प्रूफ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। क्या है, गिवन एल पैरेलल टू एम, इसका मतलब बाय द एक्सियम करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, so this implies angle 2 and angle 6 are equal, ठीक। तो and again angle 2 is equal to angle 4 because vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles तो equal होगा। so this implies I can say angle 4 and angle 6, 2 6 की बराबर, 2 4 की बराबर, 6 4 की बराबर, एंगल 4 एंड एंगल 6 बराबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही हर पेयर को प्रूव कर सकते हो, ये पेयर मैंने प्रूव कर दिया, ऐसे ही सिमिलरली सारी पेयर आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट थ्योरम इसकी रिवर्स है, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of alternate angles are equal, then the lines are parallel, है ना। इतनी इजी है थ्योरम। क्या है, इफ ए ट्रांसवर्सल, if a transversal intersect two lines, if a transversal intersects two lines such that a pair of alternate angles are equal, a pair of alternate angles, a pair of alternate angles is equal, then the two lines are parallel। इसको भी समझ लेते एक बार। तो टू लाइंस लिया है, हमको नहीं पता ये लाइंस पैरेलल है कि नहीं, लेकिन हमको ये पता चल गई इसमें alternate एंगल, ए पेयर ऑफ alternate इंटीरियर alternate एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर भी हो एक्सटीरियर भी हो, ठीक। तो यहाँ पे क्या पता चल गए, या तो एंगल 1 एंगल 7 की बराबर ये पता चल गई, या और क्या पता चल गई, एंगल 2 या एंगल 2 एंड एंगल 8 बराबर पता चल गई, या एंगल 4 एंगल 6 की बराबर, या एंगल 3 एंड एंगल 5। अगर इनमें से कोई भी एक भी पता चल गया बराबर है, देन आई विल से लाइन्स आर पैरेलल, राइट। इसको भी आप आराम से प्रूव कर सकते हो, कैसे, कोई भी एक पता चल गया, लेट से एंगल 2 एंड एंगल 8 बराबर पता चल गए, एंगल 2 एंड एंगल 8 बराबर पता चल गए। तो लेट गिवन कोई भी एक एंगल है ना, गिवन एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8, राइट। तो नाउ एंगल 2 एंड एंगल 4 बराबर क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बराबर होगा। दिस सिंपलेस्ट आई कैन से एंगल 4 एंड एंगल 8 आर इक्वल, एंगल 4 एंड एंगल 8 आर इक्वल, एंगल 4 एंगल 8 एक्चुअली क्या है, a pair of corresponding angle. If a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles equal, then the lines are parallel. Then I will say L is parallel to M by the axiom. By which axiom? If a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles are equal, then the lines are parallel. So 4 and 8 are corresponding angles, बराबर है, तो L parallel to M हो गए, ठीक। इसके बाद एक और थ्योरम से देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर एक्सियम्स दो हो गए, अल्टरनेट के एंगल्स के ऊपर थ्योरम्स दो हो गए। अब बचा क्या है, इंटीरियर एंगल्स, उसके ऊपर एक टू थ्योरम्स है, वो भी कर लेते हैं। क्या है,
If a transversal intersect two parallel lines, then the sum of then the each pair of interior angles is supplementary. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles and each pair of interior angles on the same side of transversal. On the same side of transversal is supplementary. Supplementary मतलब उसकी सम क्या होगा, 180 होगा. इसको भी देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है. दो लाइन से हमको पता चल गया ये दो लाइंस पैरेलल है. तो अगर एक ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इट विल क्रिएट 8 एंगल्स. और इस 8 एंगल्स में ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री. मतलब हमको ये पता चल गया दैट L and M are parallel. This implies each pair of interior angles is supplementary. Interior angles क्या है? Interior angles on the same side of transversal 4 and 5, angle 4 and angle 5 का sum 180, angle 3 and angle 6 का sum 180. This is what the theorem is saying. Proof भी आप आराम से कर सकते हो. इसका proof भी आप आराम से कर सकते हो. Given क्या है? L is parallel to M. ठीक, मैं प्रूव करना चाहता हूँ 4 + 5 180 या एंड 3 + 6 180. चलो 4 + 5 180 प्रूव कर लेते हैं. कम से कम इतना तो पता है अभी. एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6. क्यों? आल्टरनेट एंगल्स. अभी अभी हमने थ्योरम में किया है. दो पैरेलल लाइन से आल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा, पेयर ऑफ आल्टरनेट एंगल्स, ईच पेयर ऑफ एंगल 4 एंड एंगल 6 बराबर एंड एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज 180. क्यों? लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एक्सियम. है ना? यहाँ पे भी ऐसे लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. चलो लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम मैंने बताया था आपको क्लियरली, मैंने बताया था कि नाम से लास्ट क्लास. तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 5 एंड एंगल 6 बराबर है. दिस इंप्लाइज मैं 6 की जगह पे 4 रिप्लेस कर रहा हूँ. प्रूव हो गए. एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 180. ठीक. अब लास्ट थ्योरम है इसकी रिवर्स. इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that a pair of interior angles is supplementary, then the two lines are parallel. तो वो भी खत्म कर लेते हैं. क्या है? If a transversal intersect two lines, intersects two lines such that a pair of interior angles, a pair of interior angles on the same side of the transversal, on the same side of transversal is supplementary. A pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary. Then the lines are parallel. उल्टा, अगर मान लो कोई भी दोनों का सम, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो गए,
देन द लाइन्स आर पैरेलल। देख लेते हैं इसको भी, ये क्या कह रहा है स्टेटमेंट। दो लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स, एक ट्रांसवर्सल, एंड वी नो 8 एंगल्स विल बी जनरेटेड। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो यहाँ पे क्या है, या तो हमको पता चल गए कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज़ 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज़ 180, या एंगल 3 प्लस एंगल 6 180। इन दोनों में कोई भी एक चीज़ पता चल गई लेट से, देन क्या होगा, एल इज़ पैरेलल टू एम। आराम से इसकी प्रूफ कर सकते हैं। हमको कोई भी, इन दोनों में कोई भी एक चीज़ पता चल गया, लेट से 3 प्लस 6 9 180 पता चल गया, गिवन एंगल 3 प्लस एंगल 6 180, लेट से ये पता चल गए। ठीक, अब एंगल 3 प्लस एंगल 6 अगर 180 है, तो and if you see angle 6 and angle 7, and also angle 6 plus angle 7 is 180, क्योंकि लीनियर पेयर एक्सियम 6 प्लस 7 180। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 6 जो है एंगल 6 प्लस एंगल 7 के बराबर, दोनों 180 है, तो 3 प्लस 6 6 प्लस 7 बराबर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, एंगल 3 एंड एंगल 7। अब देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर कोई भी दो लाइंस में इंटरसेक्ट, टू लाइंस एंड ए ट्रांसवर्सल, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, आई विल से लाइंस आर पैरेलल। करस्पॉन्डिंग एंगल वाली एग्जाम, सेकंड एग्जाम, ठीक है। तो दो एग्जाम्स, चार थ्योरम्स, दो एग्जाम्स रिलेटेड टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दो थ्योरम्स रिलेटेड टू अल्टरनेट एंगल्स, एंड दो थ्योरम्स रिलेटेड टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। अगर मैं कंक्लूड करूँ जितनी भी रिजल्ट से, आई एम कंक्लूडिंग इन दिस स्पेस, हमने अभी तक क्या किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लो दो लाइंस अगर पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल है, राइट, तो यहाँ पे दो चीज़ें, टू थिंग्स हियर। चलो मैं पहले वाली कर रहा हूँ। टू लाइंस एल एंड एम आर देयर, एक ट्रांसवर्सल, अगर एल पैरेलल टू एम है, अगर एल पैरेलल टू एम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होगा, ईच पेयर ऑफ co-interior angles on the same side of the transversal is supplementary। तो if L is parallel to M, then क्या क्या हो सकता है, देखो L is parallel to M, सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। मतलब एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, और क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंड एंगल 7 के बराबर, एंड एंगल 4 एंड एंगल 8 के बराबर। सेकंड चीज, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। इज इक्वल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज इक्वल। तो एंगल 1 एंड एंगल 7 बराबर, एंगल 2 एंड एंगल 8 की बराबर, एंगल 3 एंड एंगल 5 की बराबर, समझ पा रहे हैं आप लोग, एंगल 4 एंड एंगल 6 की बराबर, राइट। नेक्स्ट, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ईच पेयर ऑफ interior angles on the same side of transversal is supplementary।
on the same side of transversal is supplementary. ठीक, देखिए क्या है, एंगल 3 एंड एंगल 6 का सम 180। सप्लीमेंट्री मतलब सम ऑफ द एंगल्स कितना होगा, 180 होगा। ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट थ्योरम्स क्या है, अगर मान लो 6 में से 3 ये हो गए रिजल्ट्स, अब और बाकी 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर मान लो कोई भी 2 लाइन्स, हमको नहीं पता ये 2 लाइन्स कैसे, आई डोंट नो हाउ दीज 2 लाइन्स आर पैरेलल, हो भी सकता है नहीं भी सकता है, बट मेरे को ये पता है एल एम and this is a transversal. This transversal is generating how many angles? Total 8 angles. Angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, angle 6, angle 7, angle 8। ऐसा सिचुएशन है, अगर मान लो मेरे को पता चल गई, अगर मान लो यहाँ पे मेरे को ये आइडिया मिल रहा है कि सबसे पहले कोई भी एक करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर बराबर हो गए, एंगल 1 एंगल 5, या देखो ऑलरेडी मैंने लिख लिया है यहाँ पे कंक्लूड, है ना, एक साथ लिख रहा था कि क्लैरिटी मिल जाए, या एंगल 2 एंगल 6 बराबर हो गए, या एंगल 3 एंगल 7 की बराबर हो गए, या एंगल 4 एंगल 8 की बराबर हो गए। अगर इनमें से कोई भी एक बराबर हो गया, आई विल से एल एंड एम आर पैरेलल। सेकंड रिजल्ट क्या है, कोई भी अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर बराबर है, एंगल 1 एंगल 7 की बराबर हो गए, या एंगल 2 एंड एंगल 8 की बराबर हो गए, या एंगल 3 एंगल 5 की बराबर हो गए, एंगल 4 एंगल 6 की बराबर हो गए, देन ऑल्सो आई कैन से एल एंड एम आर पैरेलल। ठीक, अब लास्ट, कोई भी अगर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कोई भी एक पेयर अगर सप्लीमेंट्री हो गए, देन आई विल से एल एंड एम आर पैरेलल। देख लो, टोटल 6 रिजल्ट्स मैंने इन 2 पेज पे लिख दिया। ठीक, अब क्लैरिटी आ रहा है आप लोग को। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और थ्योरम है, उसको डिस्कस करके मैं इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.2 एक्सेस करेंगे, एक लास्ट थ्योरम। तो lines which are parallel to the same line are parallel to each other. Lines which are parallel to same line are parallel to each other. ठीक, ठीक है, अगर मान लो कोई भी 3 लाइन, लेट से, इसका पहले रिजल्ट समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। लेट से देयर इज अ लाइन एल एम एन पी, एल एम एन पी, लेट से 4 लाइन्स आई एम कंसिडरिंग, एल एम एन पी। अगर हमको समहो पता चल गए, लेट गिवन, गिवन क्या है कि मान लेते हैं लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लेट से एल जो है पी की पैरेलल, एम जो है पी की पैरेलल, एन जो है पी की पैरेलल। मान लो ये पता चल गया हमको, इस फिगर में ये चीज़ पता चल गई, एल पी की पैरेलल है, एम भी पी की पैरेलल है, एन भी पी की पैरेलल है, देन आई विल से एल पैरेलल टू
m parallel to n. Lines which are parallel to same line, L and M, L M N parallel to P, same line, are parallel to each other, तो L M N आपस में भी parallel होगा. This is what he is saying. Clear? आराम से प्रूव कर सकते हो. कोई भी एक ट्रांसवर्सल ले लो. तो सबसे पहले एल पी की पैरेलल है, एल पी की पैरेलल है. तो अगर मान लो मैं इसको ये एंगल बोला, इसको सम बी एंगल बोला, एंगल ए एंड एंगल बी बराबर हो जाएगी. अब एम पी की पैरेलल है, इसको सम सी बोलो, एम पैरेलल टू, प्रूफ में बता रहा हूँ यहाँ पे, क्या है, L parallel to P. This implies I will say A is equal to D. M parallel to P, अभी मैं कह सकता हूँ B equal to D. अरे दो लाइन्स पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा. N parallel to P, I will say C is equal to D. तो इन तीनों को कंसिडर करके मैं कह सकता हूँ A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D. A इक्वल टू B, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल बाई एक्सियम L एंड M आर पैरेलल, है ना. ए सी बी डी लिखा मैंने, ए बी सी डी लिख दो, राइट. ए इक्वल टू बी, दिस इम्प्लाइज आई विल से एल इज पैरेलल टू एम, है ना. बी इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज एम इज पैरेलल टू एन. इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो आराम से. समझ आ गई, देख रहा हूँ. ठीक. अब ये है सारे कंसेप्ट्स. बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट आई विल डू एक्सरसाइज नंबर 6 इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है. तो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.